that it don't have endoplasmic reticulum, Golgi bodies, माइटोकॉन्ड्रिया तो हो ही गया, उसके बजाय माइटोकॉन्ड्रिया के बजाय कौन होता है, मीजोसोम होता है. इट हैविंग राइबोसोम्स होते हैं यहाँ. एंड विच टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम इट हैविंग, 70S राइबोसोम इट्स हैविंग. Next, these are the these structure are known as pili. These pili are very helpful and play vital role in sexual reproduction of bacteria. And ये कौन से sexual reproduction का कौन सा type है जिसमें ये help करती है? It help in conjugation. Okay, now incipient nucleus, or you can say nucleoid. यहाँ हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, यूबैक्टीरिया की जो सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल, दैट इज प्रेजेंट हियर. नो न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट हियर. यहाँ ये हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है. दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स क्रोमेटिन, बिकॉज क्रोमेटिन मटेरियल है एक्चुअल जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. देयर इज डीएनए प्रेजेंट बट नो हिस्टोन प्रोटीन, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द फॉल्स क्रोमेटिन. इसके अलावा एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज सर्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए and this is known as plasmid. This plasmid term was given by Lederberg. The plasmid incipient nucleus के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे ऐसे होते हैं जिनमें क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, एंड दैट इज नोन एज, दैट इज सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड. इट हैविंग द पावर ऑफ रेप्लिकेशन, अपना रेप्लिका ये अपने आप बनाता है. इट हैविंग द पावर ऑफ रेप्लिकेशन, इट कैन रेप्लिकेट एंड द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय लेडरबर्ग. लेडरबर्ग ने प्लाज्मिड टर्म दी थी. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम. हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड प्रेजेंट है नहीं है, उसके बेस पे हमारे बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एफ फैक्टर, और एफ फैक्टर मींस फर्टिलिटी फैक्टर. फर्टिलिटी फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया. फर्स्ट इज एफ, दिस बैक्टीरिया, एंड दिस इज नोन एज डोनर और दिस इज मेल. ड्यूरिंग द सेक्सुअल conjugation it act as a F positive act as the donor or it is male. Second is जिसके पास F factor fertility factor नहीं होता, that is known as F negative, and this is recipient, and this is female. During the conjugation process, these pili which are present all over the body surface of the bacteria, they present here. In case of conjugation, they play very important role. They conjugate with the recipient and transmit the F plasmid या fertility factor from donor to recipient, and finally both cells become F positive. So student, your this topic is finished here. If you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. We will solve your problem in next video. Thank you and have a nice day.
Welcome back students. Let's we continue our topic, that is structure of bacteria. In last video we discussed about the bacteria, shape of the bacteria. Today we will discuss about the structure of bacteria. As you know, bacteria is the prokaryotic cellular organism. These are prokaryotic cellular organism. These have single cell only. So, in case of its structure, it is made up of a outer layer, and that outer layer is known as cell envelope. So, first of all, cell envelope. Cell envelope of the bacteria, that is, let's draw the diagram of a bacteria. And which type of bacteria we are discussing here? We are discussing about eubacteria. Eubacteria that are true bacteria. So this is the diagram of true bacteria. This is the structure of bacteria, only envelope, and the cell envelope of eubacteria having 3 layers. First is this, that is known as glycocalyx. This is known as glycocalyx, or this glycocalyx is capsule, you can say, another name is capsule. This is a cell wall. This is a plasma membrane, or you can say cell membrane. Cell membrane. These all 3 layers are present in the on the bacterial cell, and collectively they known as cell envelope. So you can say cell envelope is composed of 3 layers. One is glycocalyx. First is glycocalyx layer, that is capsule. So first is outermost layer. And this outermost layer is glycocalyx. This glycocalyx is known as, this is the structure, the bacterial structure, eubacterial structure having this glycocalyx structure. That type of bacteria are known as capsulated bacteria. Capsulated bacteria. The bacteria who having this outermost structure, and this outermost structure is known as capsule. So the bacteria are known as capsulated bacteria. ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर ये कैप्सूल, ये जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स है, इसकी लेयर प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया.
ये ग्लाइकोकैलिक्स का जो स्ट्रक्चर है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स and polypeptides. It is made up of polysaccharides and polypeptides. Now what is the function of this glycocalyx which is present over the bacterial cell wall? This provide more bacterial, more pathogenic, this make more pathogenic bacteria. These make bacteria more pathogenic, जिसके ऊपर ये जो हमारे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं ये बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक. These are, so you can say this glycocalyx structure which are present over the cell wall of the bacteria, this structure provide the pathogenic capacity or characteristics to the bacteria. And how it is more pathogenic? Because these provide, this structure protect, this structure glycocalyx protect the cell, protect the कौन सी cell? Bacterial cell. Protect the bacterial cell from WBCs. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये ग्लाइकोकैलिक्स का जो स्ट्रक्चर है, ये ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. ये हमारे बैक्टीरिया को, इसकी प्रेजेंस हमारे बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक बना देती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर हमारी कुछ सेल्स हैं जो हमारे अंदर एंटीबायोटिक कैपेसिटी प्रोवाइड करवाती हैं. वो कौन सी सेल्स होती हैं? WBCs. तो यहाँ ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को WBCs के अगेंस्ट, मतलब लड़ने के लिए, जो WBCs डिग्रेड कर देती हैं, तो यहाँ ये स्ट्रक्चर उसे प्रोटेक्ट करता है. इसीलिए ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया को मोर पैथोजेनिक बना देती हैं. Second structure of the cell envelope, that is about cell wall. ये आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, that is cell wall. Cell wall कहाँ प्रेजेंट है? Cell wall हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये ग्लाइकोकैलिक्स, this is the glycocalyx, outermost layer that is, and this is plasma membrane. और ये बीच की जो लेयर है, दोनों के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है, मीन्स ये यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स है नहीं ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस इज द सेल वॉल स्ट्रक्चर. एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, in last video we discussed that it is made up of peptidoglycan. It provide the rigidity to the cellular structure. ये सेल वॉल है, ये इसका फंक्शन है कि ये हमारी बैक्टीरियल सेल को रिजिडिटी, टफनेस प्रोवाइड करवाती है. थिकनेस, ये हमारी सेल वॉल के बेस पे हमारे बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ द बैक्टीरिया. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया there are 2 types of bacteria. 2 types. बैक्टीरिया की स्टेनिंग की थी, किसने की थी अभी बताते हैं. फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एंड सेकंड इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया.
actually there are on the basis of staining of the bacteria. स्टेनिंग किसकी, बैक्टीरियल सेल की जब की गई थी तो वो किस पर डिपेंड होता है, दैट इज डिपेंड ऑन सेल वॉल स्ट्रक्चर. देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. आफ्टर स्टेनिंग देयर वर observation of two type of bacteria, gram positive bacteria and gram negative bacteria. Now what happened during the, ये कैसे की गई थी, the staining was done by H.C. Graham. एक साइंटिस्ट थे हमारे H.C. Graham. He did the staining of bacteria. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने बैक्टीरियल सेल की स्टेनिंग की थी, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया. एंड what he did, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया की कॉलोनी ली. There are the bacteria present. And in first step, पहली स्टेप में उन्होंने क्या करवाया, इन फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही stained the bacteria. He stained the bacteria with the help of, किसकी हेल्प से, he stained the bacteria with the help of crystal violet and potassium iodide solution. देखो हमारे साइंटिस्ट थे H.C. ग्रैम. उन्होंने बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है उसके बेस पे बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन किया. कैसे किया, उन्होंने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को स्टेन किया और उन्होंने बैक्टीरिया को स्ट्रेन किसकी हेल्प से किया, क्रिस्टल वॉयलेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेके उन्होंने बैक्टीरिया को स्ट्रेन किया. और बैक्टीरिया को स्ट्रेन करने के बाद उन्होंने उसको फिर, दीज आर द बैक्टीरिया प्रेजेंट. चलिए रेड इंक से शो कर देते हैं. दीज आर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया. अब उन्होंने क्या किया, आफ्टर स्टेनिंग he washed the stained medium. और जब उन्होंने इसको वॉश्ड कर दिया, वॉश्ड कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल. Have a look here. H.C. Graham took the bacteria and he stained the bacteria with the help of crystal violet and iodide solution, potassium iodide solution, and then after he washed the stained medium with the help of acetone and ethyl alcohol. And what he observed there are two types of bacteria. After washed the solution, after washed the medium, he observed there are two type of bacteria. One is the type of bacteria was gram positive, means the bacteria who retained the stain. And after retaining the stain, these bacteria are colorized. ये इनका कलर था, तो कलर इनका आया, तो ये कौन से बैक्टीरिया थे, these were gram positive bacteria. And another type of bacteria which were decolorized, जिनका कलर नहीं था, they were gram negative bacteria. So after the experiment of H.C. Graham, there were two type of bacteria on the basis of cell wall, staining of cell wall. One type of bacteria were
first type of bacteria were gram positive who retained the staining, and second was decolorized जिनकी स्टेनिंग नहीं हो पाई, उन पे कलर नहीं आया, और जिनकी स्टेनिंग हुई उन पे कलर आया। तो यहाँ पे देखिए आप दो टाइप के बैक्टीरिया ऑब्जर्व HSC ग्राम को, एक ग्राम पॉजिटिव, उन्होंने अपने नाम पे इनका जिनका पॉजिटिव मतलब जिन्होंने स्ट्रेन को रिटेन किया उनका नाम इन्होंने रखा ग्राम पॉजिटिव, और वो बैक्टीरिया जिन्होंने अपने स्ट्रेन को रिटेन नहीं किया जिसकी वजह से उनका कलर नहीं आया, देन दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हमारी सेल वॉल की कंपोजिशन के बेस पे देयर आर टू टाइप बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, and this was discovered by HSC Graham. So cell wall, on the basis of staining of cell wall, HSC Graham differentiated bacteria in of two types. First is gram positive and second is gram negative. Now you very well know about this that gram positive our cell wall is made up of peptidoglycan or murine. In case of gram positive bacteria, their cell wall is thick. इनकी cell wall thick होती है, cell wall is thick and single layered. सिंगल लेयर्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उनकी सेल वॉल थिक होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, एंड म्यूरिन की प्रेजेंस है दैट इज 70 to 80%। म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं? 70 to 80% होते हैं। यहाँ पे लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट लिपिड्स, इसको नीचे लिखेंगे, देयर आर लिपिड्स ऑल्सो प्रेजेंट बट इन लेस क्वांटिटी। लिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बट इन लेस क्वांटिटी, बट इन लेस। यहाँ पे हमारा ग्राम पॉजिटिव है वो ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं होता, ग्राम नेगेटिव ज़्यादा पैथोजेनिक होती है। तो देखिए ग्राम नेगेटिव के बारे में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनकी सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल इज डबल लेयर्ड, cell wall is double layered and murine is present very few, that is 10 to 15%। यहाँ पे म्यूरिन कितनी प्रेजेंट होती है? 70 to 80%। यहाँ कितनी होती है? बहुत कम होती है, 10 to 15। यहाँ लिपिड्स, लिपोप्रोटीन यू कैन से, लिपोप्रोटीन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन आर abundantly present। So this was the basic difference between gram positive and gram negative bacteria on the basis of composition of cell wall, and cell wall के बेस पे यहाँ बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, एक वो
जिनकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, लिपिड्स हैं वो कम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनमें कहा जाता है तो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं वो। यहाँ पे म्यूरिन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, ये कम पैथोजेनिक होते हैं, दे आर लेस पैथोजेनिक, दीज बैक्टीरिया आर लेस पैथोजेनिक। But gram-negative bacteria are more pathogenic. More pathogenic. Gram-negative bacteria are more pathogenic and gram-positive bacteria are less pathogenic. Next, plasma membrane. Plasma membrane is another layer or innermost layer. There is this is the plasma membrane, or you can say this is cell membrane. Cell membrane. But there are some invagination or extension towards the cytoplasm. These are known as mesosome. Mesosome. These mesosomes are the extension of the plasma membrane towards the cytoplasm structure, and mesosome are very important for this structure because they having oxidative enzymes, और ये सेम माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में काम करते हैं वैसे ही they behave as a mitochondria just like the eukaryotic cell. So mitochondria का क्या function होता है? It help in respiration, generation of energy. यहाँ in case of prokaryotes mitochondria का काम कौन करता है? That is performed by mesosome. So look here, mesosome. Mesosome. These mesosomes are invagination of plasma membrane. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंड हो जाती है और ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? We call that is the mesosome. It increases surface area. जब ये रेस्पिरेशन करती है तो रेस्पिरेशन जो है हमारा उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, वेरी सिंपल होना चाहिए, फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए उनका, इसीलिए रेस्पिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाती हैं. तो इट इज़ द इन्वेजिनेशन या एक्सटेंशन टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड देयर आर मेसोसोम सिर्फ इतना ही काम नहीं करता. मेसोसोम्स कैसे करता है? दे बिहेव as a mitochondria in eukaryotes. ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोट्स में जो हमारे प्रेजेंट होते हैं उनकी तरह बिहेव करता है. Why? It having oxidative enzyme. तो आप ये बोल सकते हो कि ये हमारे रेस्पिरेटरी या फिर ए पावर हाउस, प्रोकैरियोटिक के पावर हाउस, हमारे यूकैरियोटिक सेल के पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. यहाँ पे हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम रखते हैं और इसीलिए ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ मेसोसोम. मेसोसोम का काम सिर्फ इतना ही नहीं है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोसोम on the basis of their position and function.
मेसोसोम्स के बेस पे और मेसोसोम्स की पोजीशन के बेस पे यहाँ पे दो टाइप के मेसोसोम्स होते हैं. फर्स्ट इज पेरिफेरल मेसोसोम, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया पेरिफेरल मेसोसोम. पेरिफेरल मेसोसोम एंड सेकंड इज सेंट्रल मेसोसोम. पेरिफेरल मेसोसोम नाम से पता चल रहा है जो पेरीफ्री पे प्रेजेंट है, मतलब ये जो मेसोसोम आप देख रहे हो, these mesosome are invagination of plasma membrane and these are very helpful, yeah, play vital role in respiration. These type of mesosomes are known as peripheral mesosome. Peripheral mesosome. And another mesosomes are in the form of vesicles and they are present near the nucleoid region. ये हमारे जो मेसोसोम है ये इन्हीं से पेरिफेरल मेसोसोम से ही बने हुए हैं, बट ये यहाँ से वेसिकल्स के रूप में मूव करके हमारे यू बैक्टीरिया या हमारी बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस के पास चले जाते हैं. This nucleus, this is not nucleus, you can say this is nucleoid or incipient nucleus. Incipient nucleus you can say. And what is the role of these are, ये peripheral mesosomes, these are present, yeah, these are enfolding, yeah, invagination of plasma membrane and किसमें हेल्प करते हैं ये? They help in respiration of the cell. Secondly, what about the central mesosome? क्या ये भी respiration में हेल्प करते हैं? So look here, central mesosome, these are present near the incipient nucleus. और न्यूक्लियस को जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेलुलर का न्यूक्लियस है उसे जीनोफोर भी कहते हैं. सो सेंट्रल मेसोसोम, these are present near the incipient nucleus. And this incipient nucleus is also known as nucleoid. भाई प्रोकैरियोटिक सेलुलर का तो न्यूक्लियस होता नहीं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज incipient nucleus or nucleoid region. Second, what is the function of mesosome? They help in respiration. And what is the function of central mesosome? They don't help in respiration. These type of mesosome help in cell division, and DNA or RNA replication. DNA replication you can say, not RNA, DNA replication. तो ये हमारा central mesosome है. It is present near the incipient nucleus and these type of mesosome help in cell division or DNA replication. Next, about the cytoplasm of the plasma of the prokaryotic cell. Plasma membranes is provide the protection to the fluid, which fluid is present inside the plasma membrane, and this fluid is known as cytoplasm. Cytoplasm. Actually the word is, proper word for this cytoplasm is cytosol, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो वो होता है ना जिसके अंदर सेल ऑर्गनले होते हैं, यहाँ कोई सेल ऑर्गनले है नहीं, सो दैट दिस इज साइटोसोल. नाउ दिस इज साइटोसोल या दिस इज साइटोप्लाज्म डोंट हैव, in case of prokaryotic cell, it don't have endoplasmic reticulum,
because it don't have the nucleus, it don't have endoplasmic reticulum, Golgi bodies, माइटोकॉन्ड्रिया तो हो ही गया, उसके बजाय माइटोकॉन्ड्रिया के बजाय कौन होता है, मीजोसोम होता है. इट हैविंग राइबोसोम्स होते हैं यहाँ. एंड विच टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम इट हैविंग, 70S राइबोसोम इट्स हैविंग. Next, these are the these structure are known as pili. These pili are very helpful and play vital role in sexual reproduction of bacteria. And ये कौन से sexual reproduction का कौन सा type है जिसमें ये help करती है? It help in conjugation. Okay, now incipient nucleus, or you can say nucleoid. यहाँ हमारे प्रोकैरियोटिक सेल यू बैक्टीरिया की जो सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल दैट इज प्रेजेंट हियर. नो न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट हियर. यहाँ ये हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है. दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स क्रोमेटिन, बिकॉज क्रोमेटिन मटेरियल है एक्चुअल जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. देयर इज डीएनए प्रेजेंट बट नो हिस्टोन प्रोटीन, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द फॉल्स क्रोमेटिन. इसके अलावा एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज सर्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए and this is known as plasmid. This plasmid term was given by Lederberg. The plasmid incipient nucleus के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे ऐसे होते हैं जिनमें क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, एंड दैट इज नोन एज दैट इज सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड. इट हैविंग द पावर ऑफ रेप्लिकेशन, अपना रेप्लिका ये अपने आप बनाता है. इट हैविंग द पावर ऑफ रेप्लिकेशन, इट कैन रेप्लिकेट एंड द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय लेडरबर्ग. लेडरबर्ग ने प्लाज्मिड टर्म दी थी. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम. हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड प्रेजेंट है नहीं है, उसके बेस पे हमारे बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एफ फैक्टर, और एफ फैक्टर मींस फर्टिलिटी फैक्टर. फर्टिलिटी फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया. फर्स्ट इज एफ, this bacteria, and this is known as donor, or this is male. During the sexual conjugation it act as a F positive, act as the donor, or it is male. Second is जिसके पास F factor fertility factor नहीं होता, that is known as F negative, and this is recipient. This is recipient and this is female. During the conjugation process, these pili which are present all over the body surface of the bacteria, they present here. In case of conjugation, they play very important role. They conjugate with the recipient and transmit the F plasmid या fertility factor from donor to recipient, and finally both cells become F positive. So student, here this topic is finished here. If you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. We will solve your problem in next video. Thank you and have a nice day.